Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is again Asmat Banu Panwar, Assistant Professor of Zoology Department, Government Girls Degree College, Nawabshah. Today is my lecture from Biology book, chapter number 2. Topic: Locomotion in Animalia. This topic is my favorite topic because I love nature. In this lecture, our main objective is to learn about the locomotion into two categories. One is invertebrate and other category is vertebrate. In the case of invertebrate, again there are two categories. In first category, we will study unicellular organisms from phylum Protozoa, which includes Amoeba, Paramecium, Euglena. Second category of invertebrates, there is multicellular organisms from the phylum Animalia, in which we will study the locomotion of jellyfish, earthworm, snail, starfish and cockroach. And in second main category of locomotion is vertebrate. We will study the fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. We will start our discussion with the definition of locomotion. Movement or ability to move from one place to another is called locomotion. Now, locomotion in various organisms take place in a variety of ways because it is brought about by different organs, जैसे कि amoeba, earthworm और snakes ज़ाहिरी तौर पर तो क्रोलिंग करते हैं, बट इनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं या लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. अब पैरामेशियम और फिशेस स्विम तो दोनों ही करते हैं मगर विथ डिफरेंट ऑर्गन्स. पैरामेशियम अपनी सीलिया से स्विम करता है जबकि फिश अपनी मसल्स और स्केलेटन को स्विंग के लिए यूज करती है. Now, further to understand the locomotion in different organisms, we will study some organisms in two categories, invertebrates और vertebrates. अभी हम इसमें invertebrates में unicellular species की स्टडी करेंगे जिसमें पैरामेशियम और यूग्लिना आ जाते हैं. Locomotion in amoeba. The amoeba moves with the help of finger-like projections called pseudopodia, false feet. Amoeba के अंदर एक temporary या false feet arise होती हैं जिनको हम pseudopodia कहते हैं. They arise from its outer surface in many directions. When pseudopodium is formed, the bulk of cytoplasm is transferred into it. Thus, amoeba move to that direction. This process may be repeated again. The other smaller pseudopodium become functionless. It is called amoeboid movement. In the cytoplasm of amoeba, the outer part is jelly-like called plasma gel and inner part is fluid-like called plasma sol. amoeba के साइटोप्लाज्म की जो बाहर वाला पोर्शन होता है या आउटर पार्ट जो होता है उसको हम प्लाज्मा जेल कहते हैं और उसके अंदर वाला जो पार्ट जो फ्लूइड लाइक होता है उसको हम प्लाज्मा सोल कहते हैं. इन द pseudopodium, first plasma gel and then plasma sol enter. In this way, during movement, the cytoplasm is changed into fluid-like plasma sol and jelly-like plasma gel form in alternate manner. Locomotion in paramecium. Paramecium has a slippery body which facilitated its swimming in water with ease.
This swimming is facilitated by a beating of cilia. The body of a paramecium is covered all over by a large number of short, thread-like extensions of plasma membrane. These are called as a cilia. पेरामीशियम की पूरी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बने हुए होते हैं उससे कवर्ड होती है, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं. Locomotion in paramecium takes place by the beating of these cilia and hence is called ciliary movement. And this paramecium move about the speed of 1500 micron per second. During movement, cilia move backward and forward, and locomotion is brought about by alternate power stroke and recovery stroke. A powerful backward power stroke of hundreds of these cilia push the body forward. इसमें जो बहुत सारे 100 की तादाद में जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जब ये बैकवर्ड पावर स्ट्रोक में आते हैं या लाते हैं तो उसकी वजह से पेरामीशियम की जो बॉडी होती है वो फॉरवर्ड मूव होती है. प्रोग्रेसिवली सीलिया वेव लाइक मैनर में मूव करते हैं और पेरामीशियम में लोकोमोशन होता है. इस एनिमेशन में भी आप इस पेरामीशियम को वेव लाइक मैनर में लोकोमोशन की देख सकते हैं. Locomotion in Euglena. In Euglena, locomotion takes place by flagella. These flagella are long, thread-like structure and arise from upper region of the body. Here I must mention that the flagella are longer than cilia, जबकि cilia shorter. जबकि सीलिया जो पेरामीशियम में होते हैं शॉर्टर थ्रेड लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, और फ्लैजिला जो होते हैं वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. Here the movement brought about by the flagella is called flagellary movement. The flagella perform whipping action against water in backward and forward direction. And locomotion is brought about by the alternate right and left strokes and recovery strokes, and thus help the animal to move forward. यानी कि इन्हीं फ्लैजिला की मदद से यूग्लिना मूव करता है. Now we will study the second category of invertebrate, multicellular organisms from the phylum Animalia, in which we will study the locomotion of starfish, snail, earthworm, jellyfish and cockroach. Locomotion in starfish. स्टारफिश में लोकोमोशन कंट्रोल जो होती है वो वाटर वस्कुलर सिस्टम के जरिए से होती है. सबसे पहले हम वाटर वस्कुलर के सिस्टम को थोड़ा सा जानेंगे. वाटर जो इंटर होता है स्टारफिश के अंदर वो मेड्रीपोराइट जो पार्ट है, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है मेड्रीपोराइट पार्ट, इसके जरिए से वाटर में स्टारफिश के सिस्टम में अंदर दाखिल होता है थ्रू द स्टोन केनाल. स्टोन केनाल के बाद ये आता है रिंग केनाल में, रिंग केनाल में आएगा. उसके बाद ये रेडियल केनाल में आएगा वाटर, यानी कि रिंग केनाल में आया और उसके बाद फिर ये रेडियल केनाल जो पेंटागोनल शेप में ये जो स्ट्रक्चर है वाटर वस्कुलर सिस्टम, इसमें जो है वो वाटर फिलअप हो जाएगा. अब इस रेडियल केनाल के दोनों साइड्स से आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो लेटरली और वेंट्रली होते हैं स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम ट्यूब फीट कहते हैं. और ट्यूब फीट्स के फिर अपर वाला पोर्शन जो होता है वो होलो मस्कुलर होता है जो रेडियल केनाल के साथ अटैच होता है.
इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम सकर्स कहते हैं। और जब इम्प्यूला ये यानी कि ऊपर ये इम्प्यूला जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जब इम्प्यूला कंट्रैक्ट होता है तो ट्यूब फीट लेंथ में इंक्रीज हो जाती हैं। और ये जो ट्यूब फीट्स का नीचे वाला शक्कर वाला जो पोर्शन है वो किसी ऑब्जेक्ट या सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है। जैसे कि आप इस फिगर में देखें तो ये जो है इसमें ट्यूब फीट लेंथन है, यानी कि इसमें लेंथ इनकी इंक्रीज की हुई है ये। और यहाँ पर ये जो सकर्स हैं जब सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं या किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद ये सकर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये फ्लूइड जो होता है वो बैक साइड जो इम्प्यूला पार्ट है उधर फ्लूइड चला जाता है और ये फ्लैसिड हो जाते हैं या इनकी ग्रिप जो होती है वो खत्म हो जाती है। और इस तरीके से इस फिगर में आप देखें तो यहाँ पर आपको सकर्स जो है वो क्लोजली नजर आ रहे हैं कि ये दीज पार्ट आर सकर। और जब ये इनकी ग्रिप खत्म हो जाती है जैसे यहाँ पर दिखाया है यहाँ पर दिखाया है, तो उसके बाद फिर ये जो स्टारफिश होती है वो फॉरवर्ड मूव करती है। तो इसी तरीके से इनकी स्टारफिश की लोकोमोशन होती है वाटर वेस्कुलर सिस्टम के जरिए से। तो इनकी जैसे लोकोमोशन होती है, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन सारे ही जो है सिस्टम इसके जरिए से चलती है। Locomotion in snail. Locomotion in snail, like thermolysis, take place by specialized organ, the foot. यानी कि स्नेल के अंदर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है लोकोमोशन का जिसको हम फुट कहते हैं। Snail move by the contraction of muscles underside the foot. इस फुट के अंदर मसल्स होते हैं जिसकी कंट्रैक्शन की वजह से ये मूव करते हैं। These contractions are brought about under the influences of hydrostatic pressure of the body fluid. और इनमें कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो हाइड्रोस्टेटिक बॉडी फ्लूइड के प्रेशर से जो है वो इन्फ्लुएंसेस होता है जिसकी वजह से इनमें मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है। The waves of contraction from front to the rear push the animal forward. एक वेवी कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो इनके फुट में या फ्रंट में प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से स्नेल जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है। This movement is made easy by slimy secretion of the mucus gland poured in front of the foot and animal virtually slip forward. इसके फुट के फ्रंट में एक म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो एक स्लिपरी सिक्रेशन जो है वो करते हैं जिसकी वजह से इनके जो फुट होते हैं या इसका जो फॉरवर्ड बॉडी पार्ट होता है वो इसमें से स्लिप होके आगे को मूव करता है। This gives rise to the familiar shining track left by the moving cell. जिसकी वजह से जब ये स्नेल आगे को मूव करता है तो लेफ्ट साइड एक शाइनी ट्रैक जो होता है वो नजर आता है। इस व्यू में भी आप देख सकते हैं कि स्नेल किस तरह से मूव कर रहा है और ये शाइनी ट्रैक जो है वो भी दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। लोकोमोशन इन अर्थवर्म। जैसे कि आपको पता है कि अर्थवर्म जो है वो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेड वर्म है। ये मोस्टली सॉइल में सर्वाइव करता है और जैसे कि आपको पता है कि ये इन्वर्टिब्रेट्स से बिलोंग करता है और इन्वर्टिब्रेट्स में जो स्केलेटन होता है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। इट मींस के फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम आते हैं देखते हैं कि कौन से मेन दो पार्ट्स हैं ऑर्गन्स हैं जिसकी वजह से लोकोमोशन जो है वो पॉसिबल होती है। तो एक पार्ट होता है सीटिया, सीटिया की वजह से लोकोमोशन होती है और दूसरा पार्ट जो है वो है मसल्स, मस्कुलर सिस्टम जो इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि दो तरह के मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और सर्कुलर मसल्स हैं। इस तस्वीर में भी आप क्लियर देख सकते हैं कि जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स होता है तो इट मींस दैट मसल्स इज गोइंग टू एक्सटेंडेड, यानी कि मसल्स एक्सटेंडेड हो जाते हैं। वेयर इज ऑन अदर साइड सर्कुलर मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो श्रिंक होने के साथ लॉन्गिट्यूडनल मसल
मसल रिलैक्स होने से इलोंगेटेड होगा। इन सब में बॉडी लेंथ में इंक्रीज होगी और हार्ड भी होगी। सिमिलरली जब सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होगा तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे बॉडी थिक और साइज में शॉर्ट भी होगी। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा मतलब अपोजिट होते हैं। एक रिलैक्स होगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा और यही मैकेनिज्म है जो अर्थवर्म अपनी बॉडी को जो है मूव करवाता है। और आपने भी अक्सर अर्थवर्म को जमीन पर रेंगते हुए देखा होगा, वो इसी मैकेनिज्म के तहत जमीन पर रेंगता है। लोकोमोशन इन जेलीफिश। Jellyfish has an umbrella-shaped body which floats freely on water or swims by contracting its muscle cells, forcing the water powerfully out of its mouth and umbrella to create a jet propulsion effect. जेलीफिश का स्ट्रक्चर जो होता है वो अम्ब्रेला शेप की तरह होता है और ये फ्रीली जो है वो वाटर में स्विम करती है, अपने मसल्स की वजह से स्विम करती है। इनके मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। जब ये रिलैक्स होते हैं तो इसके अंदर जो इसका जो बेल शेप जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें माउथ और इसका अम्ब्रेला जो है इसके अंदर वाटर फिलअप हो जाता है। फिर यही मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पूरी फोर्स के साथ इसके माउथ में से और इसकी अम्ब्रेला वाली शेप में से वाटर बाहर निकलता है, यानी कि उसको हम जेट प्रोपल्शन इफेक्ट कहेंगे। और ये जेलीफिश जो है वो अपवर्ड मूव करेगी। जेलीफिश मूव इन जेट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सपेल्ड वाटर। जेलीफिश जो है वो एक झटके की तरह, जैसे झटका लगता है इस तरह झटकों में वो मूव करती है, लेकिन वाटर जिस डायरेक्शन में वाटर निकलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। यहाँ पर भी आप डिफरेंट व्यूज में आप देखेंगे जेलीफिश किस तरह से मूव कर रही है। लोकोमोशन इन कॉकरोच। जैसे कि आपको पता है कि कॉकरोच जो है वो इंसेक्ट है और ये फाइलम आर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है। और आर्थ्रोपोड्स वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं या स्पीशीज होते हैं वो जॉइंटेड लेग्स रखते हैं और इनका स्केलेटन जो होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है। अब इसमें क्या है कि कॉकरोच के अंदर इसका एक्सोस्केलेटन, इसका मस्कुलर सिस्टम और इसकी जॉइंटेड लेग्स जो हैं, ये तीनों की इंटरेक्शन की वजह से इसमें जो लोकोमोशन हो रही है बहुत फास्ट और स्विफ्ट हो रही है, यानी कि इजीली ये लोकोमोट कर सकता है और फास्टली कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो मसल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फ्लेक्सर मसल्स होते हैं और दूसरे होते हैं एक्सटेंशन मसल्स। और ये दोनों जो है वो एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। ये फ्लेक्सर मसल्स हैं और ये एक्सटेंशन मसल्स हैं और ये दोनों एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, यानी कि एक मसल्स जो है जॉइंट को जो है वो कॉन्टेक्ट करेगा, खींचेगा, तो दूसरा जो है उसी सेम जॉइंट को फिर रिलैक्स करेगा। इसकी वजह से लोकोमोशन कॉकरोच की लेग्स में होती है। अच्छा, एक और बात कि इसकी जो लोकोमोशन इतनी फास्ट हो रही है, इसका ये एडवांटेज है कि ये अपनी प्रे को इजीली कैच कर सकता है और उसके अलावा ये अपने प्रीडेटर से जो है स्कैप भी कर सकता है, यानी कि भाग जाता है। यानी कि इसमें कॉकरोच जो है वो फास्टली मूव कर रहा है, इसकी वजह से ये अपने जो है वो जो है प्रे को इजीली पकड़ सकता है और फिर अपने जो शिकारी होता है या समझे जो उसको खाना चाह रहा होता है उससे वो भाग जाता है। तो इसकी एडवांटेज ये है कि ये हर जगह पर जो है वो पहुंचे हुए होते हैं या हर जगह पर जो प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी बात कि इसमें कॉकरोच जो है वो बेस्ट विथ विंग्स, यानी कि कॉकरोच के अंदर जो है वो विंग्स होते हैं जिसकी वजह से ये फ्लाई भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कॉकरोच जो है वो किस तरीके से मूव करता है। Now, in this topic, we will study second main category of locomotion. Vertebrate. We will study the locomotion in fishes, amphibians, reptiles, bird and mammals. Locomotion in fish.
बेसिक स्केलेटल प्लान तमाम वर्टिब्रेट्स में तकरीबन सेम ही होता है, अलबत्ता उसमें जो स्केलेटन होता है वो मॉडिफाइड होता है, मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एंड मोड ऑफ लोकोमोशन। अब जबकि मछलियाँ पानी में रहती हैं और ये जो होती हैं वाटर में अंडुलेटिंग मूवमेंट मीन्स लहरों की सूरत में अपनी बॉडी और टेल की मदद से फ्रीली स्विम करती हैं, और ये इनके अंदर मौजूद जो फ्लेक्सिबल वर्टिब्रल कॉलम की वजह से पॉसिबल होता है, जबकि ये अपना बैलेंस करना बॉडी को और स्टीयरिंग मतलब घूमना या अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए अपनी पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन की मदद से करती हैं। लोकोमोशन इन एम्फीबियंस, जैसे कि आपको पता है कि एम्फीबियंस का मतलब वो स्पीशीज होते हैं जो वाटर में सर्वाइव करते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, खुश्की पर भी रहने वाले होते हैं। Amphibians are considered as the first land vertebrate. They have two pairs of limbs for locomotion. Their hind limbs are longer and spread out of the body. They mostly perform dragging movement, but in frog, jumping movement is present. आप इस व्यूज में आप देख सकते हैं कि फ्रॉग जंपिंग भी कर रहा है, स्विमिंग भी कर रहा है और क्रोलिंग भी कर रहा है। Locomotion in reptiles. In reptiles, two pairs of strong legs are present for locomotion. Early reptiles had sprawled legs which were used to drag their body, but gradually these legs are changed into proper size and shape for walking and running. Birds and mammals. Birds and mammals have most advanced mechanism of locomotion. In mammals, two pairs of limbs are used for movement. In birds and arthropods, such as the male and apex, two legs are used in proper walking and running. Four limbs are used to take food and other purpose. In birds, four limbs are modified into wings, which are used in flying. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बर्ड्स में फोर लिम्ब जो है विंग्स में चेंज हो गया है, और यहाँ पर मेन के जो फोर लिम्ब्स हैं जिसको हम आर्म्स भी कहते हैं, यूज्ड टू टेक फूड एंड अदर पर्पस। I hope you all have understood my lecture and you have gained some useful knowledge about this topic. Inshallah, this lecture will help you in your exams. Further, I am waiting for your comments and queries. Please like and subscribe our YouTube channel Sindh College Lectures for getting more knowledge from lectures. Till next lecture, take care, stay home, be safe. Allah Hafiz.